ਇਹ ਵੀ ਠੰਡੇ ਹੋਣ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਵਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਠੰਡੇ ਹੋਣ ਆਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਆਕੇ ਮੈਂ ਹੱਕ ਤੇ ਖਲੋਤੀ ਆ। ਹਰ ਸ਼ਾਇਦ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਵਾਂ ਦਿਓ अमर मान ले उस मालिक से इस तरह की सियासत कर ये ही कर देने इस तरह की सियासत अल्लाह तो कह रहे हैं इतना ही होता जिंदाबाद ओ बस होए सबर कर भाई नाथ वलीमे ते आए हैं चाचा सबर कर बंदा फोत होया सबर कर चलो आराम छो ना की कर लोगों के थ्रू मैसेजेस जो है सिर्फ इस वजह से क्योंकि हमारा जलसा कराया पीटीआई छोड़ दो, दो बंदे जो थे जिनको उठाए, एक ने लिख के दे दिए, 2 दिन के बाद उसको छोड़ दिए। ये पार्किंग की आज सुबह से पता नहीं बेचारे फौत हो गए थे, तो आज रात को जब उन्होंने देखे लोगों को पता नहीं चलेगा तो रात ये तो मुजम्मल साहब नहीं आए थे, तो मुजम्मल साहब आए, वो पीटीआई की जो वकील है वो लेने के लिए आए, तो उनको डेड बॉडी उनके हवाले कर। कुर्सियां बीबियां दे दी वो तो होड़ लिया वो कुर्सी यार कदरों पीछे हो जाओ जो भी थोड़ा कोई इंसाफ बच गया वो लेके जाएंगे। लीगल टीम सारे बह के उसका कॉन्सिक्वेंस सारे देख के अफजाल अपना काजी साहब नाल थोड़ा करके ठीक है ਅਸੀਂ इंशाल्लाह ताला हर लिहाज नाल एक मिनट जी हर लिहाज नाल इस जुल्म दा बदला जरूर लवांगे और ਅਸੀਂ आखिरी हद तक इंसाफ लैके देने की हर तरह की कोशिश करांगे। अगर साडा कोई मुतालबा नहीं मनते किसी गल इलाज करने तो लैके लाल काम लाते साढ़े जो मजमून है FIR के मुताबिक नहीं काम करते असं उठाने नहीं असं इतने बैठे रहेंगे। दूसरा साढ़ा है कि FIR ला देंगे साढ़े बंदे इंशाअल्लाह ताला कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करांगे और पूरी तरह अगर एक तो तुम जान ले साडे भी लोग है साडे लगा चढ़न पैर नहीं बचना ना पीछे प्रोटोकॉल दिओ तुसी इन्हां सारे डीपीओ चौधरी साहब आ रहे हैं तो DPO साहब आ रहे हैं जरा डीपीओ साहब ने तो लिया डीपीओ साहब सल्यूट ਤੁਹਾਡੀ ਯਜ਼ੀदियत ਨੂੰ सल्यूट जा मेरे गल करिए आराम करिए आराम गल करिए सारे गोली मारो नहीं सारे गोली मारो इंसाफ दे नहीं सारे गोली मार छोड़ो बंदा इतने ट्रैफिक तक मारिया जे बस यार जा यारा आराम नाल मैं ये कह रहा हूँ कि आराम से बात करें और एक या दो बंदा मिल बाकी बात भाई एक मिनट सबर यार एक मिनट अगर आप करना चाहते हो तो आप करें बस भाई एक मिनट करना चाहते हैं तो आप आगे आ जाए सबर करो मुझे बस सुते उठाया ओपन जल से हो रहा है। मेरा कादरी अफजाल अहमद नाम है, मेरे वालिद ने बेटा हूं।
ਜਿਨ ਟਾਰਚਰ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜੀ ਸਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਸੁੱਤੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ ਚੁੱਪ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦ ਸੇ ਉਹ ਬੁਲਾਏ ਹੋਏ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਤਾਰਕ ਰਾਈਸ ਮਿਲ ਉੱਤੇ ਜਲਸਾ ਹੋਇਆ, ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਕਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਸਾਊਂਡ ਰੱਖ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਲੈਕਸ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਢੋਲਾਂ ਨਾਲ ਜਲਸਾ ਹੋਇਆ, 1200 ਬੰਦੇ ਦਾ ਰੋਟੀ ਟੁੱਕਾ ਸਾਲ ਹੈ ਤੂੰ ਲਾਈਵ ਹੈ, ਚੁੱਪ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਜਲਸਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਘਰ 'ਚ ਬੰਦੇ ਆਉਣਗੇ, 4 ਦੀਵਾਰੀ ਦਾ ਘਰ ਹੋਵੇ 8 ਮਰਲੇ ਦਾ, 10 ਜ਼ਿਆਦਾ 100 ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨਰ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਬੀਬੀ ਬੱਸ ਵਾਲੀ। ਮੈਂ ਕਿਆ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਸਾਰਾ 28 ਤਰੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ, ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਕਿਆ ਮੈਂ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਸਰ? ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਮੈਂ ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਮੇਰੀ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 40-50 ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਫਲੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਕੋਈ ਤਸ਼ਹੀਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਨਹੀਂ, 40 ਤੋਂ 50 ਬੰਦੇ ਟੋਟਲ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਔਰ ਸਾਡੇ ਆਡੀ ਦੁਆਡੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਨੇ, ਔਰ ਬੀਬੀ ਬੱਸ ਮਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ। ਬੀਬੀ ਬੱਸ ਮਾਂ ਦੇ ਗਏ ਤੇ ਬਾਹਰ ਲੜਕਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ 2 ਡਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ, 1 ਬਿਗੋ ਡਾਲਾ ਆ ਕੇ ਖੜਿਆ। ਸਰ ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਆਇਨ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਖਿਲਾਫ ਵਰਜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਡਾਲਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚਾਹੇ DPO ਸਾਹਿਬ ਸਾਨ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਾਲਿਆ ਚਾਹੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਆਣ, ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਹਲਫ ਚੁੱਕੇ ਆ, बस करो बात सुन ਉਹਨਾਂ ਹਲਫ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ बेटा बस करो ਦੀ अब बात जरा सुन ਆਇਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਨੀ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਨੀ। ਸਰ ਕਿਆ ਮੇਰੇ ਘਰ ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। करें भाई अगे अखा च पैंदा है बच्चे वाली गल कर लाइटां बंद कर दो ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੈ ਆਂਦਾ। गल सुनो ਜਾਲੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਜਲਸਾ ਸਾਡਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਲੜਕੇ ਖਿਲਾਰੇ ਸਨ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ PTI ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਜੁਰਮ ਹੈ। ਲੜਕਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਰ ਬਾਹਰ 2 ਡਾਲੇ ਆ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਸਿਵਲ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਫਿਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਸ ਜਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨ, ਸਾਡੇ ਜਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਵਲ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੜਕਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਸਰ ਬੀਬੀ ਬਾਸਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਅਸੀਂ ਚੱਲਨੇ ਆ, ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੀ ਜੁਰਮ ਹੈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਨਰ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਲੇ ਅਗਾ ਪਿਛਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੀਬੀ ਸਾਹਿਬਾ ਉੱਥੋਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆ। 80 ਸਾਲ ਦੇ ਵਾਲੇ 75-80 ਸਾਲ ਉਮਰ है, सफेद दाढ़ी है, दरवेश आदमी ने। उन्हें पूछा है कि मेरा कसूर दसो, ਪੁਆਇੰਟ ਆਂਦੇ ਨਵਾਜ਼ੀ मेरा कसूर की है? उन्हें कहा जी तुसी जलसा करवाया अपने घर दे विच, PTI दा तुहाडा कसूर है। उन्हें कहा चलो जे अगर ये कसूर है तो वो ते असीं कर बैठे हैं, वो अगे लगे ने, आ गए इत्थे, वो आ गए ने, कोई दरखास्त नहीं, कोई FIR नहीं, कोई दरखास्त FIR थाने दे विच नहीं। असीं सर हर सिफारिश सर मसला नहीं, पता है की गल देखो ना, मैं एक गल करांगा, नहीं मैं 1 मिनट, मैं तुहाडी इस गल नाल इत्तेफाक नहीं करांगा। ओदी वजह जितना मेरा नुकसान होया ना उतना DPO साहब दा होया, ना इन्हां दी टीम दा होया। DPO ਸਾਹਿਬ 2 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ DPO ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਖਲੋਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਰਾਮ ਨਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੀ ਭਾਈ ਰਾਮ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਤਮੀਜ਼ ਵਰਤੀ ਹੈ। 2 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਯਾਰ यार इसको साइड पे कर लो
साइड पे आपको एहतराम है या नहीं है किसी को? ओए यार मैं अगे एक दफा ਤੁਹਾਨੂੰ समझाया कि तमीज के दायरे में रह गल कोई बंदा बदतमीजी ना करे। बेटा आ जाओ बाहर आके जिससे बात करनी है ना थाने से बाहर आके थाने के गेट से बाहर आके थाने दे बाहर बंदे तो बाहर ना जाओ वाला बाहर ओए सारे बाहर ना जाओ ਇੱਥੇ ही रहो एक बंदा जाए काजी साहब कोई बंदा बाहर ना जाए बंदे ਇੱਥੇ ही बाहर ना जाओ ਇੱਥੇ क्यों बाहर जाविए कोई बंदा बाहर ना जावे बाहर ना जाए थाना इन्हां दी जागीर है अंदर आओ सारे बाहर ना जाओ कोई बंदा बाहर ना जाए तरीके नाल बाहर ले चला डीपीओ गल करी दिया कि करे गल भी करने दिखा रहे ना अस्सलाम वालेकुम की हाल है थाने यार की गड्डी आते मेरा जुर्म या मेरे वाले साहब का जुर्म किसी तस्लीम कर दिया किसी जुर्म कीता नहीं कीता तो फिर सारे इस पुलिस ने क्यों उठा के लिया मेरे वाले साहब? सर मैं गल तो दस दी है कि मेरा जुर्म है कि मैं घर दे पीटीए ते जलसा करवाया। अच्छा फिर ये लैके आए ने असा हर सिफारिश करवाई SHO साहब ने सिफारिश करवाई है तुसी DPO साहब हो तुहाडे कोल भी कालां होणीਆਂ ने मेरे कोल हो के मैं रूबरू मेरे मतलब जिन्हां बंदियां ने तुहानू कालां कीतियां ने कि बुजुर्ग दे दिओ तुसी भी टाइम मंगदे रहे पर मेरे बुजुर्ग दा मेरे वालिद साहब दा की नहीं जे अगर तुहाडी नजर च अगर असी जुर्म कीता या मेरे लाइट बंद करो यार बंद कर ला बाकी जो मर्जी अगर मेरे वालिद साहब ने कोई जुर्म कीता है कोई चोरी कीती है डकैती कीती है कोई किसी किस्म का जुर्म कीता है ठीक है सारो दी ते सजा होनी ठीक चाहिए। है अगर कोई जुर्म ही नहीं अगर कोई बंदा जुर्म करता है उसकी दरखास्त और तैयार होती है 6 दिन 7 दिन हो गए मतलब 28 तरीक का गिरफ्तार किया कोई FIR नहीं कोई दरखास्त नहीं बगैर जुर्म तो हवालात दे विच थाने दे विच मेरा वालिद सर क्या है आइन और कानून दे मुताबिक है ठीक है गलत सर फिर सन अगर तुसी तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते कौन देगा इंडिया की फौज या देंगे आपको तहफ़्फ़ुज़ क्यों नहीं मैं देखता हूं इसको मेरे वालिद साहब की जान चली गई है मैं उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ की करांगा जेड़ा तुसी उन्होंने दोगे जान का तो इंसान जी मैं जानना कि अल्लाह ताला दे कब्जा कुदरत है जिंदगी और मौत ओदे हाथ विच है ਇਹਦੇ ਚ जो ज्यादती हुई है मैं अभी देखता हूँ मैं इसीलिए आपका क्या ख्याल है नॉर्मली कोई DPO इस तरह नहीं होता कि फौरन सुन के आ जाए मैं देखता हूँ इसमें क्या ज्यादती है जिसने ज्यादती इसीलिए मैं तो सर आपको भी इस जाति का मुर्तकब समझता हूँ इसलिए कि ऐसे नहीं होता जिम्मेदार हम फिर सारे ही होते हैं ऊपर तक जब खलीफा धूम कहते हैं कि बच्चा जो है वो मर जाए तो कभी होता है लेकिन बात ये है कि हमने कोई टेंशन नहीं सीट के मुताबिक जरूर जिम्मेदार वो तो फिर जो हमारे सरकार ने कह दिया ऐसे ही है कि जिम्मेदार सारे होते हैं लेकिन नीचे जितने जो खोल के बदमाश ने सरेआम बंदे मारी मैं देखता हूँ मुझे सिफारिशें आप इस तरह नहीं कह सकते मुझे सिफारिशें या मेरा फोन तो सारी दिहाड़ी चलता रहता है और एक नहीं हजारों केस होते हैं इस तरह मैं देख लेता हूँ जी जी ऐसे ही है बिल्कुल मैंने गुजारिश की है ना साहब मैंने गुजारिश की है ना कि मैं सारी चीजें देख लेता हूँ इसको बैठ के देखते हैं मैं आया ही इसीलिए ये नहीं है कि सिर्फ आपसे बात करके जाने के लिए आया हूँ मैं सारी इंक्वायरी करता हूँ और बाकायदा इसमें कमेटी बना के सारी एक चीजें देखता हूँ अब आप मुझे काम करने का मौका देंगे तो मैं जरूर करूँगा जितनी देर आप बात करते हैं मैं आपके साथ खड़ा हूँ और इस जुल्म ज़्यादती के साथ आपका साथ तो बेटा लाइटां तो मैं कितनी बारी कह चुका हूं यार बंद कर लेता ठीक होंदी है
खड़ा अगर सर जो तुसी ये नहीं पाਉਂਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆਉਂਦੀ बिल्कुल अगर तुसी साथ साडे नाल होंदे ना ते वो गल पहले या कि जिंदगी मौत ते अल्लाह दे हाथ अगर तुसी